day. So briefly, I think most of the students might know the meaning of this word is. Dr. Bansal will explain that word in detail basically. So as the system, as the formalization of our economy is going on, this word has a very big meaning for us. So the government, or you can say the system, cannot give jobs to all or most of the students. So this word itself is very important, because entrepreneur means you have to develop your own system, own mechanism, so that you can or the group of students or group of people can start a work, can start a venture, so that they can excel in their life, they can propagate some good money, and from that you can say system, they can give jobs to some other people. So I again welcome you all. I, along with my Vice President, Professor Jitinder Singh, welcome you all. So I request Dr. Bansal to kindly explain and give some enlightenment regarding this entrepreneurship. Jitinder sir, and Major sir. Major sir, Major sir, Speed ma'am and dear students. Why entrepreneurship, and why this day, World Entrepreneurship Day, which is celebrated on 21st September every year? Why? What's the need of this World Entrepreneurship Day? Why entrepreneurs are so important? Your mind must be boggling about it, and I will be discussing a few things about this entrepreneurship. And what is an entrepreneur? Who is an entrepreneur? What entrepreneur does, and what role it plays in the economy? Economics. In economics, a person who takes a risk to create a new product. New product. Some are a completely new product, maybe. A new product, or develop a better way to operate a business, is called entrepreneur. Okay. Primary factors of production as per economics, which were considered as primary factors of production. These were land, labor and capital. Three factors of production were considered always. Traditionally, we used to consider only three factors: land, labor and capital. तीन फैक्टर हम लोग यूज करते हैं: लैंड, जमीन जो आप सभी को पता है, लेबर जो भी उस पर काम करेगा, एंड कैपिटल सम मनी, बिकॉज कुछ ना कुछ इनपुट हमें प्रोड्यूस. तो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ये एंटरप्रेन्योर कहाँ पे आ गया? चौथा फैक्टर कहाँ पे आ गया? एंटरप्रेन्योरशिप. एक बहुत बड़ा गैप था कि क्या हम वीट को एज सच कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. We have to make wheat flour out of it. Wheat का क्या करते हैं? आटा बनाते हैं, पीसते हैं, उसको तैयार करके आटा बनाते हैं. आप मार्केट से wheat ला के सीधा खाते हो या आटा ला के खाते हो? राइस आप सीधा जो राइस निकलता है जिस तरीके से, जिस शेप में, वैसा ला के खाते हो? नहीं. हम उसको कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग के बाद जो राइस पकाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस राइस को हम क्या बोलते हैं, पारबॉइल्ड भी आता है और दूसरा भी आता है. दोनों तरीके जो भी राइस शेलर्स है, उनका काम किया, उसका छिलका उतार के राइस हस्क को अलग करके राइस का जो ग्रेन है वो हमें बेचते हैं. मार्केट में पैकिंग कैसा मिलता है? राइस ग्रेन्स का. और फाइनल कस्टमर है, और वो घर पे तो शेलिंग नहीं करेगा, उसकी राइस के ग्रेन घर पे लाएगा, उसको शेलिंग करेगा, फिर उसका राइस तैयार करेगा? नहीं कर सकता. होता था किसी टाइम में, बहुत सारी चीज़ें लोग घर पे प्रोसेस करते थे. आटे की चक्की छोटी सी घर पे रख लेते थे, थोड़ा सा आटा चाहिए होता था, उतना बीट लेते थे, उसको घर पे हाथ से पीस लेते थे. मैकेनाइजेशन नहीं. लेकिन आज के टाइम में क्या है? मैकेनाइजेशन. आप कोई भी, पहले आटा होने वाला है तो पहले ही उनको अंदाजा है कि 15 दिन में 5 किलो खत्म होगा, वो दूसरी लाते हैं. ग्रोसरी जब वो लेके आते हैं ना, राशन लेके आते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि
इतने किलो आटा, इतने किलो ये, इतने किलो वो। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रैक्टिसेस क्या है, एज पर नीड है। अब नीड क्या है? नीड तो यही है कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो आपके लिए उस तरीके से चीजें तैयार करके देता है आपको, जो वैल्यू एडिशन करके देता है। अगर हम दूसरे लफ्जों में बात करें, अर्लियर लोग क्या करते थे, एक घर पे, आप सभी ने सुना भी होगा, अपने ग्रैंड्स से सुना होगा, पेरेंट्स तो नहीं लेकिन ग्रैंड से सुना होगा कि घर पे चरखे वगैरह रहते थे और उस पर कपड़ा लेडीज बनाती थी, कोई फ्री टाइम में बना लिया, कभी कुछ कर दिया। ग्रैंड और ग्रैंड पेरेंट्स से जरूर सुना होगा। तो ये कॉमन चीज थी सभी के घर पे। स्लोली क्या हुआ, कपड़ा ले आए, एक थान ले आते थे, उसी से घर के बड़ों से लेके छोटे बच्चों तक के कपड़े उसी कलर के, उसी थान के, उसी प्रिंट के, उसी सारा का सारा बनता था। मैंने बरातें देखी हैं ऐसी जिसमें वो सारी फैमिली के एक ही कलर के कपड़े ना, जब बहुत छोटे थे हम लोग, आपने नहीं देखी होंगी, सारी बरात के एक ही कलर के कपड़े। विलेजेस में अभी भी शायद कहीं ना कहीं हो गई अवेलेबल बच्ची, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, आप लोग क्या करते हो? कलर कॉम्बिनेशन। यकीन कीजिए जब मैं छोटा था हमें पता नहीं था कि ये ड्रेस मैच कर रही है या नहीं, से पूछते थे, चॉइस पूछते थे, जो मिल गया। तो ये सारी चीजें क्यों अवेलेबल क्यों है? क्योंकि वो बीच में एंटरप्रेन्योर्स आए। वो एंटरप्रेन्योर कौन है? जो आपको टी शर्ट बना के दे, जो आपको क्या बोलते हो पता नहीं, आजकल वो कौन कौन से कट आते हैं, कौन कौन से कस्टमाइज तो है ही है सर। रेडीमेड में भी 25 किस्म के, वो किसी नेक, किसी में कौन सी नेक है, किसी में बटन यहाँ पे लगे, किसी में बटन इधर लगे हैं। सो क्रू नेक और कौन सी सर, और भी बता दीजिए, मैं तो, मेरे को पता नहीं है, मैं तो आपको देखते हैं कि नया क्या लेके हूँ मार्केट में, लोग अट्रैक्ट किस तरफ होंगे, कलर कॉम्बिनेशन क्या चलेगा। एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जो फैशन चलाते हैं, समझ लो मेरी बात को। किसी को नहीं पता था कि कौन सी मैंने अपनी लाइफ में जो क्या बोलेंगे उसको, ट्राउजर्स है ना, वो नैरो बॉटम और वाइड बॉटम वाली 2-3 बार फैशन आते आते देख लिया मैंने। कभी कोई चलती है, कभी कोई चलती है। लोगों को लगता है कि यही फैशन है, सभी आउट ऑफ फैशन हो गया। 10, 15, 20 साल के बाद वही फैशन दोबारा आ गया। सेम इज विद कोट, जो आप कोट पैंट पहनते हो, कोट के साथ कभी वो डबल बटन आ गया, कभी सिंगल बटन आ गया, कभी कौन सा आ गया, कौन सा, वो रोटेशन है। वो कौन करता कौन है? वो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कपड़ा लेके उसके ऊपर अपना प्रोसेस करते हैं। लेकिन उसके साथ एक चीज और है, वन हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज। में बहुत कम जॉब्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब बहुत कम रहती है। जॉब सीकर्स हमेशा जॉब से ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, ये मान के चलिए। रेशो कम ज्यादा हो सकती है लेकिन रहेंगे वैसे ही। एग्रीकल्चर वायबल है? नहीं, एग्रीकल्चर वायबल नहीं है कभी। हाँ, मैं पहले बोल रहा हूँ व्हीट। आपने, आप में से कोई आटे का ब्रांड बता सकते हैं मेरे को? आटा जो हम खाते हैं, आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, पॉपुलर ब्रांड है। कहाँ का ब्रांड है? आईटीसी। आईटीसी रोड में बनता है, पंजाब में बनता है। पर इंडिया का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? पंजाब। और ब्रांड कहाँ का यूज कर रहे हैं? मध्य प्रदेश। ये बेसिकली गुड़गांव, they have their head office at Gurgaon, they have one big unit at Haridwar, they have one unit in Hoshiarpur also, छोटा यूनिट एक उन्होंने होशियारपुर में लगाया यूनिट। क्यों? क्योंकि उनको वीट की ट्रांसपोर्टेशन ना करनी पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक रेशो बना दी, ब्लेंडिंग करते हैं एमपी वीट जो सर बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश की वीट की विद पंजाब वीट, नथिंग एल्स। उन्होंने एक टेस्ट डिजाइन कर लिया। और बिलीव करिए पंजाबियों का अपना कोई ब्रांड नहीं है। और आप चले जाइए कभी नॉर्थ अमेरिका, आपको जाने का मौका मिले, भगवान करे कि आप जल्दी से जल्दी फॉरेन जाके नॉर्थ अमेरिका में जाइए, वहाँ पे 2 ब्रांड चलते हैं आटे के, और सारे वो दोनों ब्रांड पंजाबियों के हैं। बड़े शेर आटा, शेर ब्रांड एंड ब्रार आटा। बिलीव करिए सारे नॉर्थ अमेरिका पे रूल करते हैं वो लोग। पंजाब में वो फैक्ट है, फैक्ट के साथ बता रहा हूँ आपको,
ठीक है ना। वन ऑफ माय फ्रेंड इज इनटू दिस बिजनेस, बासमती बिजनेस में, और वो एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए मेरे को ज़्यादा थोड़ा आइडिया है उसका। सारे जो अच्छे ब्रांड है वो अपने एरिया में 10, 15, 20 राइस शेलर्स, 20-25 राइस शेलर है बड़े वाले, सॉर्टेक्स लगी है जिनके पास कंप्यूटराइज सॉर्टिंग मशीन्स हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं, वो क्वालिटी बनाते हैं, ब्रांडिंग के लिए वो क्वालिटी बनाते हैं। ब्रांड नहीं है उनका, लेकिन वो ब्रांडिंग वाली क्वालिटी बनाते हैं। कभी उनके पास 4 मीनार वाले बैठे हैं, कभी कोहिनूर वाले बैठे हैं, कभी कोई बैठा है, कोई एक्सपोर्टर बैठा है, कोई ये लाल किला वाले पंजाब के थे, वो भी गुड़गांव चले गए, ठीक है। कोई सारे निकल के बाहर बैठे हैं ब्रांड्स अपने। पंजाब का अपना ब्रांड एक आध ब्रांड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा है ही नहीं है। और मार्केट में 20 ब्रांड अवेलेबल है, आप पैकिंग पे पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कहाँ तक है। आपको मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। हम लोग जूस पीते हैं ट्रॉपिकाना रियल, अबोर का बना पिया किसी ने? कितने लोग हैं? हमारे टेबल पे नहीं है अवेलेबल वो जूसेस, समझिए। और ये सारी बेल्ट है, कीनू बेल्ट, ये सारी की सारी कीनू बेल्ट है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वजह क्या है, क्या वजह है ये सारी चीजों की हमारे लिए? आज मैं सुबह मार्केट में जाके हूँ, होलसेल जिसको मंडी बोल देते हैं, क्या रेट होगा अवेलेबल होलसेल में अमरूद का? की रेट मेलन आते हैं, मस्क मेलन आते हैं, वो कभी मौका मिले जलंधर जाने का उस साइड से, कभी ना इधर की तरफ जो लोहिया की तरफ से और ये कपूरथला की तरफ से, रोड पे कभी ना आप शीशा डाउन करके स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डंप किए हुए हैं, वो पूरी गाड़ियां डंप की हुई हैं, सिर्फ इसलिए उनको बायर नहीं मिलता। देखिए है तो फ्रूट, है तो फूड। आज भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, शायद अभी भी लिखा होगा उनकी वेबसाइट के ऊपर, कुछ साल पहले लिखा रहता था कि 1 लाख करोड़ रुपए पर एनम से ज़्यादा के अमाउंट का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रेन्स हर साल वेस्ट चला जाता है ड्यू टू नॉन प्रोसेस। हम क्योंकि एग्री बेस्ड इकॉनमी है तो हमारी तो नेचुरली शेयर उसमें ज़्यादा ही होगा। चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो ठीक है डिस्कस कर ली। अब एक चीज बहुत बढ़िया है कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्या जरूरत क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बना, तो वहाँ के डायरेक्टर एक उनके साथ मेरा, मैं कई बार लेक्चर देने जाता था उनको वहाँ पे, तो डायरेक्टर के साथ बात हुई, मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, कहता प्रोफेसर साहब आप बताओ, कहता बेसन कितने दिन में कंज्यूम, कितने दिन के अंदर कंज्यूम होना चाहिए जब आप उसको पीस लेते हैं? तो मेरा एक लेमैन वाला आंसर था, सर 3-4 महीने में। तो कहता जी 15 दिन के बाद बेसन अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है और टेक्निकली उसको हमें खाना नहीं चाहिए। आटा जो है वो 10-15 दिन के बाद आटा नहीं खाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे जो चक्की घर पे रखते थे, और समझ लो मेरी बात। और हम लोग क्या है, लिथार्जी, तो ठीक है मार्केट से ले आए 3-4 महीने, उसके ऊपर लगा 6 मंथ्स एक्सपायरी, हम बिलीव करके बैठे कि ये 6 मंथ्स में ही एक्सपायर हो जाए। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में किसी को पता है कि क्या ऐसा डाला जाता है? घंटा 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। वजह क्या है? ये मोस्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है फॉर बैक्टीरिया एंड पायरोजेंस ग्रोथ। साइंस सभी ने पढ़ी है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बस इतना ही है। बायोलॉजी तो पढ़ी है थोड़ी बहुत आप सबने। पायरोजन एंड ग्रोथ के लिए क्या चाहिए बेटा? ह्यूमिडिटी और थोड़ा हॉट एनवायरनमेंट, ठीक है ना? वो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन वही दूध हमें पास्चराइजेशन के साथ उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? 3 to 4 days। पास्चराइज्ड है, पैकेट है, फ्रिज में रखी है 3 या 4 दिन, उसके ऊपर स्टैंपिंग की हुई है, वो खराब नहीं होगी, ठीक है? कोई भी फूड हम मार्केट से लेके आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, ऐसा क्या करते हैं? यूजुअली जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन भर देते हैं। कई बार ना किसी प्रोडक्ट में ज्यादा भरी हो तो आपको एकदम से ये चिप्स का पैकेट आप फूला सा नहीं रहता, हवा नहीं भरती उसमें बेटा। अगर हवा भरी तो उसमें छोटे छोटे आपको और नजर आएंगे, बन जाएगा उसमें सब कुछ अगर सीधा काम करेंगे। दे सिंपली फिल नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन? क्यों? सेहत के लिए अच्छी है,
कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। Whatever you eat from those packets, simply those products are nitrogen laced. कहीं ना कहीं तो उसमें एंटर हुई ना वो, हम खुश होके खाते हैं कि ये लेज का चिप्स है, 50 रुपीज का पैकेट है, कितना। देखिए वजह क्या है, वजह यही है कि हमने फ्रेश फूड की बजाय दूसरे पे आ गए। लेकिन है क्या, अब 5 रुपए 10 रुपए किलो वाले आलू को वो किस रेट में बेच रहे हैं आपको? फ्यू 100 रुपीज, फ्यू 100 रुपीज वो 15-20 ग्राम होता है जो 20 रुपए का पैकेट आता है। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप में से कोई एक बंदा एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वो शायद सारे बाकी लोगों को जॉब दे सकता है। इंपॉर्टेंस समझते हैं उसकी, ज्यादा नहीं जरूरत। अगर मेरे 2-3%, 4% स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर बन जाएं हर साल, तो मेरे बाकी स्टूडेंट्स को भी जॉब दे सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें, ये इतना इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जो ये सेशन का भी पर्पस है। लेकिन बहुत बार दिमाग में आता है कि क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। तो मेरा आज के सेशन का एक पार्ट जो है, एक एंटरप्रेन्योरशिप ऑडिट मैंने बनाया है, काफ़ी सालों से चल रहा हूँ इसी पे। तो इस पे क्या है कि आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। एक छोटा आप ऐसा रिस्क लेना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो अनवारंटेड, जिसमें ये हो कि ये रिस्क रहेगा, पता नहीं पैसे आएंगे या जाएंगे, क्या होगा, ऐसा रिस्क ले सकते हैं। इफ यू कैन राइट वाई, अदरवाइज राइट एंड। लिख लीजिए क्विकली, ये क्वेश्चंस के बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करना है। क्वेश्चन पहला समझ में आ गया था सबके? आ गया? ओनली रिलेटेड टू मनी और किसी भी तरह के, मैं बाइक को 120 की स्पीड पे चलाता हूँ, रिस्क तो माइंड में है, वो चाहे मनी का है, चाहे फिजिकली बॉडी के साथ है। इवन अनवांटेड रिस्क क्वेश्चन ओके हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, डू यू प्लान अहेड ऑन मोस्ट थिंग्स टू डू? क्या आप जो काम करते हैं क्या उसको प्लान करके करते हैं या अनप्लान वे में करते हैं, बाद में सोचेंगे क्या होगा, ऐसे चलता है या नहीं, पहले प्लान करके फिर काम? इफ यू प्लान इन एडवांस, आप प्लान करके चलते हैं, तो राइट वाई, अदरवाइज राइट एंड। ओके, प्लीज डोंट डिस्कस अमंग योरसेल्फ, डोंट डिस्कस। ये इंडिविजुअल है, ऑडिट इंडिविजुअल है और अपने तक ही। हेड फॉर नंबर्स एंड फाइनेंसेस, क्या आप कैलकुलेट करके काम करते हैं या बिना कैलकुलेट किए? कुछ लोग होते हैं ना जो हम कहते हैं बहुत हिसाबी किताबी आदमी है, ये तो इसको हर चीज का कैलकुलेट पहले करता है, कितने का आएगा, कितने में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। डू यू मेक इट अ पॉइंट टू कंप्लीट व्हेन यू स्टार्ट? जो काम आप शुरू करते हैं क्या उसको खत्म करके दम लेते हैं या बीच में छोड़ देते हैं? अगर आप खत्म करते हैं, आपको लगता है कि ये काम मैंने शुरू किया है, इसको खत्म भी मैं ही करूंगा, होता है ना, तो उस तरीके से then write why, otherwise write and। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूं मैं। इट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा है? फिफ्थ है ना। कैन यू सर्वाइव अ ड्रॉप इन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? अगर जरूरत पड़ती है तो क्या, अगर मेरे को इनकम नहीं होगी तो क्या मैं 200 रुपए में ये इसी तरह की शर्ट या इसी साइज की ला के पहन सकता हूँ? थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे ला सकता हूँ या नहीं ला सकता? ठीक है, अगर कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, देन राइट वाई, अदरवाइज एंड। 5 हो गए बेटा ये क्वेश्चन। चलो 6, आर यू एबल टू टेक डिसीजन विदाउट डेथरिंग? बिना वेवर किए, बिना, कई बार तो कई लोग होते हैं नहीं नहीं हो गया, इसमें क्या सोचने वाली बात है, तो आप कैसे करें? अगर आप डिसीजन ले सकते हैं देन राइट वाई, अदरवाइज एंड। ओके, आर यू फ्री ऑफ मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स? फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है जो मैंने कोई मान लीजिए लोन लेना है वापस करना, या मैंने किसी से पैसे पकड़े हैं, या बहुत बड़ी कोई ऐसी फाइनेंशियल कमिटमेंट करके बैठा हूँ कि मेरे को वो पैसे पहले पूरे करने हैं, बाद में
मैंने पैसे ही देने हैं बहुत ज़्यादा या कोई लोन लेके बैठा हूँ, तो मैं अपना बिजनेस शुरू करने में मेरे कैसे टेंशन फ्री कैसे हो सकता हूँ? वो तो मेरे को देना है, वापस करना है। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट उसको बोलते हैं जिसमें आपने किसी के पैसे देने हैं या कोई लोन लेके बैठे हैं बहुत हैवी, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, हैवी लोन। प्लीज नॉट डिस्कस, प्लीज। सकते हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ मिलजुल सकते हैं। या आप अकड़ में रहते हैं, ईगो वाले हैं कि नहीं मैं कैसे पता है इसको क्या अकड़ है, इसको पता ही नहीं, तो बात नहीं करता ऐसे लोग। अगर तो आप मिलजुल सकते हैं, काम ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, then right, otherwise no. Is your career path in your company flattening out? ये एक्चुअली हमने वर्किंग के लिए बनाया हुआ एक सर्वे था, एक ये सारा ऑडिट वर्किंग लोगों के लिए बनाया गया था। कंपनी पाथ का मतलब ये है कि आपके सीनियर कितनी सैलरी पे गए हैं, आपको सब आइडिया है, और आप कोई रेयर होगा जो ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरी मार्केट में इस वक्त क्या वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही? कोई रेयर होगा बेटा कोई जिसको ये नहीं पता कि मैं मार्केट में कितने की जॉब ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। नहीं आइडिया, आइडिया सबको है, सबको पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। वो ठीक है, हम मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि जितने पैसे आपको जॉब में मिलेंगे वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। करियर पाथ यानी कि आप नहीं चाहते कि आप जॉब करें, इसका मीनिंग यही है कि क्या आप चाहते हैं कि आप वो वाली जॉब करें जिसमें आपको लगता है कि आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, या आपको लगता है कहाँ फंस गए यार, क्या ट्रैवल भी करना पड़ेगा। कई बार होता ना, ट्रैवल करना पड़ेगा, अच्छा फिर तो नहीं मेरे लिए सूटेबल। ये कहता अच्छा मजा आ गया, फिर ट्रैवल करना पड़ेगा, वाह 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 क्या बात है। दोनों दो डिफरेंट सिचुएशंस है। आप अगर एंजॉय करते हैं देन राइट यस, अदरवाइज नो। क्या आप लोगों को लीड कर सकते हैं? आप लीडरशिप क्वालिटीज है, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, वो आप पे भरोसा करें, ऐसा इस तरीके से लीड कर सकते हैं, देन राइट यस, वाई और नो। एंड Do you have a clear vision about your dreams? क्या आपको अपने ड्रीम्स के बारे में क्लियर विजन है? अपने बच्चों से 4th के, तो उसने पूछा क्या बनोगे आप बड़े होकर? तो मैं पायलट बनूंगा। ठीक है, वो नेट पे पढ़ रहा था मैं सारी स्टोरी। तो वो कोई 30 इयर्स के बाद सेम टीचर वाज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन, तो नेचुरली उसको पायलट को कहीं से पता चल गया और ही केम टू हर एंड वो दोनों फोटोग्राफ्स डाली हुई थी। जब वो क्लास में उसने बच्चे ने कहा कि मैं पायलट बनूंगा 30-35 साल के बाद, ही क्या बोलेंगे, प्लेन को उड़ा रहा था और वो टीचर उसी प्लेन में आई और उसने पायलट ने उसके साथ जाके वो पिक्चर क्लिक कराई। यानी कि सो क्लियर अबाउट द ड्रीम भी वो कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बेटे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही सोचते हैं कि मेरे को करना तो यही करना है, माई कैरियर पाथ इज दिस इज माय करियर पाथ। मैं आपको एक एग्जांपल दिमाग में आता है कि कुछ इनोवेशन किया जा सकता है, कुछ नया दिया जा सकता है। जो चल रहा है ये तो चल ही रहा है, इसको बेटर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मार्केट में अभी क्या चलेगा, मेरे पास एक फोन है, अब मैं नया फोन क्यों लूंगा, कुछ बेटर फोन। वेबसाइट डिस्कस करते हैं कि इस नए एप्पल में क्या आया, नई गाड़ी मार्केट में आई, किया का नया मॉडल आया, तो उसमें क्या क्या फीचर्स बेटर आए हैं। वो बेसिकली क्या है, सम इनोवेशंस आते हैं, तभी मार्केट में बिकेगा ना। पुराना अगर सेम तो आदमी लेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ चेंज तो करना पड़ता है। क्या आपके पास आइडियाज है, ऐसे दिमाग में आता है कि ये प्रोडक्ट को ऐसे बेटर किया जा सकता है, ये चीज चेंज हो सकती है? तो अगर है तो राइट वाई, अदरवाइज एंड। हैव यू एक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल्स टू रन द न्यू वेंचर? जो आपके माइंड में आइडिया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या आपके पास उसकी स्किल है? एक सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से कोई बंदा ये सोच रहा है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया के ऊपर अपना एक वेंचर खोलना है, एक ऐसी फर्म खोलनी है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। क्या आपके पास वो स्किल है जिसमें आपके उस पर आप कर सकते हो? तो वो एक पार्ट है। अगर है आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स,
then write y, otherwise write n. समझ में आ गया सबको? वो कोई ऐसा तो नहीं ना कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है then write n. इसमें ये एक चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि किसी से शेयर करने के लिए नहीं है, आपके होगा तभी ठीक है। ऐसे करते हैं मेथड वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको करने की कोशिश करें। अगर आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप then write y, otherwise write n. Are you adaptable and flexible? क्या आप डिफरेंट चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड? अगर आप रिजिड हैं then write n, otherwise write y. If you are adaptable and flexible. ये एक important aspect है. Do you prefer working alone to teams? क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या लोगों के साथ, टीम के पीछे? कई लोग होते हैं ना, मेरी तो किसी से बनती नहीं, मैं अकेला ही करूँगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा आदमी मेरे साथ करवाता है या नहीं करवाता। दूसरा कहता नहीं। अब गेम्स में क्या होता है, अगर एक प्लेयर नहीं, एक्चुअली ये उल्टा है क्वेश्चन। अगर आप टीम में काम करना पसंद करते हैं तो देन राइट बाय। डू यू फाइंड योरसेल्फ एनविंग एंटरप्रेन्योर्स? क्या बाकी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ थोड़ी जेलसी होती है? मुकेश अंबानी कितनी गाड़ियां उसके पास, वो एंटिलिया कितना 6000 करोड़ का वो एक बंगलो ही लेके बैठा है। नहीं होना चाहिए जेलस, होना तो चाहिए, नहीं होना चाहिए। हो गए तो तभी जाके कुछ सोचेंगे। अगर जेलसी नहीं है फिर तो साधु संत बन गए, फिर तो बात ही खत्म होगी। इट्स अ फैक्ट। सभी धार्मिक ग्रंथ में क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं ना। वो अगर पूरा समझ में आ जाए तो दुनियादारी में रहना ही मुश्किल हो जाता है। Can you cope with punishing work schedules? Punishing work schedule होते हैं। अब मैं 8 घंटे, मैं कहता हूँ कि 8 घंटे काम करूँगा, इससे ज़्यादा मैं आधा घंटा भी नहीं चला सकता। ये पॉसिबल नहीं। शाम को कोई मेरे को 5 बजे के बाद रोक के देता है या सुबह मेरे को 6 बजे बुला के देता है। एंटरप्रेन्योर का कोई टाइम नहीं होता, वो रात को भी काम करना पड़ता है। हो सकता है वो सारा दिन रिलैक्स हो सकता है वो सारा का सारा 24 में से 21 घंटे उसको काम करना पड़ता। तो अगर तो आप पनिशिंग वर्क शेड्यूल कर सकते हैं देन राइट वाई, अदरवाइज राइट नो। Does your spouse, parents support your plans? Spouse मैंने हस्बैंड और वाइफ, पेरेंट्स आप सभी को समझते हो। आप अगर आप काम करना चाहते हैं, 3 इडियट्स देखी थी ना सबने? समझ आज जल्दी आ जाएगी बात। तो उसमें उसका फादर क्या बोलता है, तेरे को फोटोग्राफर नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? वो ये नहीं समझ रहा कि इसकी लेवल क्या है, वो ये बोल रहा है कि तेरे को नहीं बनना। अब बहुत बार पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तो चुप करके जॉब करना, तेरे को कोई पंगा नहीं लेना, नहीं करना, हमें काम नहीं, बिजनेस नहीं करना। क्या आपके पेरेंट्स इसमें आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो भाई, अदरवाइज नो। रिजल्ट अब इसको पढ़िए, फिर मैं आपको बता दूं। लेना चाहते हैं आप एंटरप्रेन्योरियल जो ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो आप में ज्यादा नहीं है। आपको जॉब करनी चाहिए, कोई और पंगा नहीं लेना चाहिए, राइट? 40 to 60 थोड़े वीक है, ठीक है ना? आप क्या चाहते हैं? अभी जैसा चल रहा है सिस्टम ठीक है, ज्यादा चेंज की क्या चल रहा है, चल तो रहा है, ठीक है ना? पैसे मम्मी पापा से ले रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत 8000 10,000 की जॉब मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा, मैंने ज्यादा दिमाग को लगा। अब तीसरा कहता है नहीं, मेरे को ग्रो करना है, किसी भी हालत में ग्रो करना है। I'll give you an example, आपको समझ में आएगा सारा। पेटीएम यूज करता हूँ, सबको पता पेटीएम। उसके जो ओनर है बेटा, उसके जो अभी राइट नाउ सीईओ है, उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। उनके पास पैसा नहीं था, बट विजय शेखर शर्मा वाज वेरी इंटेलिजेंट व्हाइल स्टडीइंग। तो ही टॉप यूपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है ना, तो उसने 10+2 में यूपी का एजुकेशन बोर्ड को टॉप किया।
और टॉप ऐसे नहीं किया, ही वॉज 15 years old. आपने जब +2 की आपकी कितनी एज थी? 17 to 18. Most of you were between 17 to 18. पता ही आप सबको. आपको ये भी पता होगा, शायद पता हो इस चीज़ का, कि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता अगर आपकी एज 17 से कम है. उस साल में आप 17 प्लस होने चाहिए जब आपने एडमिशन लेना है. अब विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने 15 साल की एज में यूपी का एजुकेशन बोर्ड को टॉप कर लिया 10+2 नॉन मेडिकल में. पढ़े वो हिंदी मीडियम में और उन्होंने टॉप किया, लेकिन उनको कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा. राइट. तो एक कॉलेज बड़ी मुश्किल से, दैट वाज दिल्ली वाले कॉलेजेस में आए. तो उसके जो वीसी थे उन्होंने एग्री करके, डायरेक्टर, उन्होंने कहा भी ठीक है हम एडमिशन देंगे आपको 15 साल की एज में. तो उन्होंने जाके कंप्यूटर साइंस में एडमिशन वहाँ पे ली. अब फर्स्ट रो में वो बैठे हुए, टीचर आया क्लास में, उसने कुछ पूछा, विजय शेखर शर्मा जी खड़े हो गए और आंसर करने लगे. अब आंसर कर रहे हैं हिंदी में, तो टीचर कहता स्पीक इन इंग्लिश. पता नहीं था, में लास्ट बेंच पे बैठ कर लिखा. He got this admission in 1993. नहीं 78, 93, 15 साल की एज में. और 97 में डिग्री पूरी की उसने. और 97 में एक कंपनी बनाई, एक वेबसाइट शुरू की. उन्होंने कंपनी नहीं बनाई, एक वेबसाइट शुरू की. उस वेबसाइट को उन्होंने $1 million में, वो कोई नया आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया था, 3 दोस्तों के साथ मिलकर बनाई, $1 million में सेल कर दिया 2002 में. ठीक है, $1 million में. और उसकी जब हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें पता चलता है, वो बता रहे हैं कि कहता पहली बार इतने पैसे देखे सेल की, तो बहुत सारे पैसे पहली बार देखे. कहता आई वेंट टू माय फादर, जाके पूछा कि आपका लोन कितना है. पहले तो वो क्लियर करें. कहता 10-15 लाख रुपए जो लोन था फादर के नाम पे, वो सारा क्लियर किया, क्योंकि उसने मेरी सिस्टर्स, बड़ी सिस्टर्स हैं, उनकी शादी वगैरह की थी. फिर कहता हम घर पे कलर टीवी लेके आए. बड़ी टची टाइप ऑफ स्टोरी है. ठीक है. अब सारा कुछ जो 2002 में कलर टीवी लेके आए. फिर कहता मदर के पास गया, अभी भी पैसे हैं, तू बता तेरे को क्या कपड़े वगैरह की साड़ियाँ वगैरह लेनी है तो वो ले. देखिए किस तरह की लेवल होगा, फाइनेंशियल लेवल होगा, जिसमें उस बच्चे को, बच्चा समझ लीजिए कितने साल का भाई बना दे. उस कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड. सॉरी मैं 2002 बोल रहा हूँ. 2002 में उन्होंने सेल की थी, 2000 में उन्होंने बनाई थी 197 कम्युनिकेशन. 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड आज भी पेटीएम की पेरेंट कंपनी है. आप देखेंगे तो शायद पढ़ लेंगे, नाम आ जाएगा. पेटीएम मेरा कंपनी का नाम ही है, नाम ही यही, उसका पेरेंट कंपनी वही है. पेटीएम तो एक उनका पोर्टल है जो उस पर वो काम करता है. 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड. अब उसमें उन्होंने करना क्या था, उसमें उन्होंने कोई छोटे मोटे काम करने थे, कोई इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये डिजिटल पेमेंट की कंपनी बनेगी. डिजिटल पेमेंट के लिए जो पेटीएम वगैरह के लिए उन्होंने उसको रजिस्टर किया 2010 में. तो ये समझ के चलिए कि आज आप में से कितने लोग गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज कर रहे होंगे. कर रहे हो ना सभी. आजकल बिल्कुल अनपढ़ लोग भी करते हैं, पता है आपको. एक रेडी वाला, उसके पास भी एक कॉबलर बैठा है, मोची बैठा है, उसके पास भी पेटीएम का या वो दूसरा QR कोड है गूगल पे का. और एक आदमी ने आज से 13 साल पहले ये आइडिया लेके मार्केट में आ गया था. कोई और कंपनी नहीं आई थी. ही वाज द फर्स्ट एंट्रेंट इनटू दिस मार्केट, डिजिटल पेमेंट्स. और कितने लोग थे यूज करने वाले? शायद बहुत कम. बेनिफिशियरी कौन सी कंपनी थी? पेटीएम. आज हमारा हालत यह है कि वर्ल्ड में वी आर एट नंबर 1 इन डिजिटल पेमेंट्स. आप पढ़ लीजिए, चाहे आपको मिल जाएगा. तो ये है क्या, ये स्टोरी देखिए. जो सारे मैंने ट्रेड्स आपको डिस्कस किए, उस पर स्टोरी को फिट करके देखिए. पैसा नहीं था, दिमाग था, इच्छा थी, रिस्क लेने की इच्छा भी थी. ठीक है, इनोवेटिव आइडिया था, और स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना था ये भी पता. आज शायद 30-35-40 हजार करोड़ का मालिक होगा विजय शेखर शर्मा. हम्बल, वेरी हम्बल गाय. आज भी अगर देखेंगे, सुनेंगे उसको, उसका स्टाइल वही है, उसका रहने का तरीका वही है. बड़े तरीके से वो, अभी कुछ साल पहले की बात है, अखिलेश
तो रिक्शा वाले को रोका उन्होंने, तो इसने बताया कि मेरा सीएम के साथ मीटिंग है तो इसलिए जा रहा हूँ। चलो चलते चलते वो पहुंच गया गेट पे। अब रिक्शा वाले को कोई अंदाजा नहीं कि किस आदमी को मैं लेके जा रहा हूँ। ये 5-6 साल पहले की स्टोरी है, नेट पे पढ़ी है मैंने। 7 साल जब योगी के पहले जब सीएम था अखिलेश यादव, तो जैसे ही अखिलेश यादव को अंदर नाम पहुंचा कि विजय शेखर शर्मा बाहर आया है, वो लेने के लिए आया है, और रिक्शा वाला भी एकदम से शॉक कि ये क्या हो क्या रहा है। उसको अंदाजा नहीं था कि मैं सीएम हाउस पे जा रहा हूँ। तो अखिलेश यादव को उसने देखा था, तो वो आके बाहर से रिसीव करके लेके गया। उसने बोला अपने बंदों को अखिलेश ने कि इनको रिक्शा वाले को भी बैठाओ साइड पे, इनको भी। तो काफ़ी उन्होंने गिफ्ट वगैरह दिए उसको, रिक्शा वाले को भी दिए। चलो वो तो एक अलग चीज़ है, बट अदरवाइज सच्चा हम्बल गाइड कुछ नहीं है। आप कर सकते हैं, अपनी टेक्निकल स्किल्स को आप कीजिए, मैनेजमेंट स्किल्स को आप कीजिए, अपना दिमाग उस तरफ सेट कीजिए, कोई टारगेट लीजिए, कोई एक एम लेके उसको फोकस करके चलिए, उस पर पूरा स्टडी करिए। आज की डेट में जितने स्टार्टअप हैं, हम बैठे छोटी जगह पे हैं, शायद हमें लगता है कि शायद अपॉर्चुनिटी नहीं है। यू गो टू बैंगलोर, आप हैरान हो जाएंगे वहाँ पे कितने फूड के स्टार्टअप भी वहाँ पे पता नहीं कितने हैं। और वो क्या अलग अलग प्रोडक्ट। अब एक स्टार्टअप है, उसका नाम मैं देख के बता भी दूंगा, वो चाय बेचते हैं आपके पास। अब उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी बॉटल डिजाइन कर दी जिसमें 3 घंटे चाय ठंडी नहीं होती। 170 रुपीज फॉर जस्ट इंटरप्ट यू। हमारे ठंडा में चाय वाला है उनका, ग्रेजुएट है, और उसकी इतनी चाय सेल हो रही है कि मतलब वो कहता है मुझे और किसी काम की जरूरत नहीं है। मतलब पर मंथ 1 लाख का वो प्रॉफिट कर रहा है। तो सर एक Just from tea, मॉर्निंग से चाय वाला बैठा 3 घंटे हाँ जी, सैर करना सुबह सैर करने